everyone, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to introduce you the poem Postcard from Kashmir. इसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे. I am going to explain the poem in both Hindi and English language. So let me introduce you to the poet Agha Shahid Ali. Okay, his lifespan was 1949 to 2001. Okay. Then he was born in New Delhi and educated in Kashmir and later shifted to the United States. इनका जन्म तो कश्मीर में न्यू दिल्ली में हुआ. पढ़ाई लिखाई इनकी कश्मीर में हुई. उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट को शिफ्ट हो गए थे. So though a Kashmiri Muslim, he has identified himself as an American poet English writing and who writing in English. मतलब कश्मीरी मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने अपने आप को जो पहचान दी वो एक अमेरिकन पोइट के रूप में दी. The recipient of several fellowship and awards and also a finalist for the National Book Award के ये finalist भी रह चुके हैं. His some famous works are जैसे Room Are Never Finished, okay, and the poem Kashmir Without a Post Office. इस तरह से इनकी कई famous poetry भी रह चुकी है. So what is in the poem? In the poem Postcard, इसमें क्या होता है? So let's start the poem. Actually होता क्या है कि in the poem Postcard from Kashmir, the author reminiscing about his glorious childhood in Kashmir. ऑथर को अपने बचपन की याद आती है, एक बहुत शानदार बचपन की जो वो कश्मीर में बिताता है. ठीक है, उसको वो याद कर रहा होता है. सो लेट्स सी इन द पोएम क्या होता है. हम पोएम में देखते हैं. ओके, नाउ कश्मीर shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches. Poet says the poem Postcard expresses profound sentiments and emotions, the reason being far away from one's home and the inescapable fading of memories of home after the passage of time. एक्चुअल में जो पोएम है ना, ये बहुत गहरे सेंटिमेंट्स को शो करती है. पोएट के बहुत गहरे इमोशंस को शो करती है, क्योंकि ये अपने घर से बहुत दूर जा चुका था. अब ये कश्मीर में नहीं रहता था, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहता था और ही इज़ रिमेम्बरिंग हिज होमलैंड. वो अपने घर को याद कर रहा था. सो द पोस्ट कार्ड दैट कम्स इज़ फ्रॉम होम एंड द वर्ड होम ट्रांसफर्स the imagination of the poet to the distant land that he has left far off but tries his best to hold on to its enchantment and aroma through his power of imagination. अब उसको अपने होम से, अपने घर से, कश्मीर से एक पोस्ट कार्ड आता है, पोस्ट कार्ड मिलता है और वो पोस्ट कार्ड छोटा सा होता है. तो वो कहता है कश्मीर श्रिंक्स, कश्मीर श्रिंक हो चुका है. मीन्स श्रिंक का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, CONTRECTS. कश्मीर श्रिंक हो गया, सिकुड़ के मेरे मेल बुक्स तक आ गया, मीन्स लेटर बॉक्स में आ गया है. My home a neat 4 by 6 inches. And what is the size of the postcard? Is 4 by 6. Means the picture which is stick on the postcard, जो पिक्चर पोस्टकार्ड के ऊपर चिपकी हुई थी ऑफ कश्मीर, उसका साइज होता है 4 by 6 inches. तो कहता है मेरा घर which is very neat and clean, because in his imagination the Kashmir is still very neat and clean. उसकी यादों में कश्मीर अभी भी बहुत नीट एंड क्लीन है. वो घर, वो ही रिमेंबर्स हिज होम, वो अपने घर को याद करता है कि ये 4 by 6 inches में सिमटा हुआ मेरा घर. Okay, so through his power of imagination he ever remembers his homeland. So it is the sense of nostalgia. इसको sense of nostalgia बोलते हैं, NOSTALGIA. ठीक है, ये इसमें हमेशा रहता है. अब देखते हैं आगे. So I always loved neatness. The poet says that he always loved neatness of Kashmir. उसको हमेशा से neatness का मीन्स cleanliness, हमेशा से cleanliness पसंद है. Now I hold the half-inch Himalaya in my hand, and the picture which is a stick on the postcard, there is a picture of Himalayas on this also. उसके ऊपर हिमालय की पिक्चर भी बनी हुई है. अब वो कह रहा है कि ये जो हिमालय है ये 1/2 इंच का होकर मेरे हाथ के अंदर समाया हुआ है. Okay, so physically he is at some other place, but mentally and emotionally he is in his homeland. Mentally और emotionally वो अपने घर में ही है. Then this is home. The poet says this is home. So these lines are some have some
एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी कह सकते हैं अनक्लियर है कि ये वो किसके लिए बोलता है। सो इनको एम्बिगियस लाइन्स भी बोल सकते हैं कि वो जहाँ रह रहा है, इज़ इट द होम वेयर ही इज़ स्टिल ही इज़ नाउ, जहाँ वो अभी है, और ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कश्मीर। ओके, सो दिस इज़ द एम्बिगियस लाइन, and this is the closest I'll ever be to home. Closest means very near, and he is very near to his home in his memories. मतलब memories में वो हमेशा अपने घर के पास में रहेगा. Okay, he is never going to forget his home. When I return, the colors won't be so brilliant. The Jhelam's water is so clean, so ultramarine, my love so overexposed. He says that when I return, मतलब जब वो कश्मीर में था, when I was there, the colors won't be so brilliant. Okay, when I return means when I'll return in future. फ्यूचर वो अज्यूम करता है कि जब मैं कभी जाऊंगा तो हो सकता है कलर्स ऑफ कश्मीर आर नॉट सो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन शाइनी, कि कश्मीर के कलर इतने शाइनी नहीं रहेंगे. दिस मे बी पॉसिबल. ओके, द झेलम्स वाटर इज़ सो क्लीन, बट वहाँ की जो झेलम का वाटर है वो इतना क्लीन नहीं रहेगा. सो अल्ट्रा मरीन, इतना प्योर नहीं रहेगा. माई लव सो एवर एक्सपोज्ड, स्टिल हिज लव फॉर कश्मीर इज़ मोर देन इनफ. वो मोर देन इनफ है. ओवर एक्सपोज का मीन्स है दैट ही कैनॉट एक्सप्रेस इन हिज वर्ड्स, जो वो अपने वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता. इतना उसका स्टिल मीन्स ही नोज द रियलिटी ऑफ कश्मीर. उसको पता है कि इन रियली द कश्मीर इज़ नॉट दैट मच क्लीन, इतना क्लीन नहीं है, लेकिन स्टिल ही इज़ रिमेंबरिंग हिज होमलैंड एज ए वेरी नाइस प्लेस. मतलब उसका जो लव है ना अभी भी वो ओवर एक्सपोज है. ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस द लव फॉर हिज कश्मीर, फॉर हिज होमलैंड इन हिज वर्ड्स. अपने वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. And my memory will be a little out of focus. In it, a giant negative black and white still undeveloped. And my memory will be a little out of focus. Means उसकी जो memory है ना, वो उसकी जो imagination है, memory means imagination, वो थोड़ी सी out of focus है. Means reality से बाहर है. Reality से बाहर होने का मतलब है कि उसकी जो imagination है ना वो बड़ी शानदार है. Means he is missing the Kashmir in his imagination, which is very neat and clear. वो अपनी मेमोरी में, इमेजिनेशन में जिस कश्मीर को याद कर रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड इसको पता भी है कि मेरी मेमोरी है वो रियलिटी से थोड़ी अलग है. अ जाइंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अनडिवेल्प. A giant negative means a very big negativity is in the कश्मीर. कश्मीर में अब बहुत बड़ी नेगेटिविटी है. बिकॉज ऑफ सो मच टेररिस्ट अटैक्स, बिकॉज ऑफ सो मच वायलेंस, ये सब हो चुकी है. इसकी वजह से अभी उसमें बहुत बड़ी नेगेटिविटी है. बट हिज मेमोरी विच इज़ फुल, हिज मेमोरी मीन्स हिज इमेजिनेशन विच इज़ फुल ऑफ द पॉजिटिव मेमोरीज ऑफ कश्मीर. ब्लैक एंड वाइट, द कश्मीर इज़ द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड. मीन्स गुड और बैड एक्टिविटीज़ का मिक्सचर है वो. ठीक है, कश्मीर अब मतलब उसकी मेमोरीज में तो गुड है, बट इन रियली इट इज़ ब्लैक, स्टिल अनडिवेल्प. स्टिल हिज कश्मीर इज़ नॉट डिवेल्प. मीन्स द पोएट प्रेजेंट्स द नॉस्टेल्जिया फॉर द मदरलैंड. सो दिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. नॉस्टेल्जिया ही इस पोएम की सेंट्रल थीम मानी जाती है. ठीक है, NOSTALGIA नॉस्टेल्जिक पोएम है. नॉस्टेल्जिया इस पोएम की सेंट्रल थीम मानी जाती है. सो वी कैन से राइमिंग स्कीम का देखेंगे. लिटरेरी डिवाइसेस में राइमिंग स्कीम का देखेंगे. सो देर इज़ नो राइम स्कीम ऑफ द पोएम एंड द पोएम फॉर्म इज़ नरेटिव है, कन्वर्सेशनल स्टाइल है. आयरनी का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है. आयरनी का यूज़ ऐसे किया गया है कि ब्लैक एंड वाइट, एंड इसके अलावा या ब्लैक एंड वाइट इज़ एंटीथेसिस, ANTITHESIS. Antithesis is used. Antithesis means two opposite things are written together. ब्लैक और वाइट में एंटीथेसिस का यूज़ है. आयरनी का यूज़ ऐसे है कि जो कश्मीर, द कश्मीर विच इज़ इन हिज इमेजिनेशन एंड द कश्मीर विच इज़ इन रियल, दे बोथ आर डिफरेंट. तो यहाँ आयरनी का यूज़ किया गया ना. उसकी इमेजिनेशन में तो बहुत शानदार कश्मीर है, बट इन रियल इट इज़ नॉट. रियल में वो नहीं है. इसके अलावा इंटरनल राइम भी यूज़ की गई है.
इंटरनल राइम क्लीन अल्ट्रा मरीन लाइक दिस। ओके, तो ये सब इंटरनल राइम है। इसके अलावा टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, टाइटल इसका हम अप्रोप्रिएट मान सकते हैं बिकॉज द टाइटल इज़ क्लियरली शोइंग दैट द पोइट इज़ गेटिंग ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर एंड द सेम थिंग इज़ टोल्ड इन द पोएम। ओके, देन इसके अलावा इसमें एलिट्रेशन है काफ़ी जगह। होल हिमालयाज़ में है, जैसे होल हिमालयाज़, हाफ इंच हिमालय, लेट मी सी, या हाफ इंच होल्ड हाफ इंच हिमालय इन माई हैंड। तो एलिट्रेशन इस टाइप से यूज़ किया गया है। टोन है जो इसकी सीरियस है थोड़ी सी। देन रेटोरिकल रिपीटेशन है, जैसे कि जिससे कि पोएट का क्या है कि डीप अफेक्शन नज़र आता है पोएम के अंदर। कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ है। ओके, देन या मेटानमी का यूज़ और किया गया है। मेटानमी का यूज़ ऐसे किया गया है कि ब्लैक और वाइट कलर यहाँ पर देकर, ब्लैक और वाइट मीन्स थिंग्स व्हाट हैज़ हैपन इन द पास्ट। ब्लैक एंड वाइट आर आल्सो सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक कैसे है? सिम्बॉलिक ऐसे है, ब्लैक इज़ द सिंबल ऑफ the things, bad things which has happened in the Kashmir, and white means the beauty of Kashmir. So both are presented, दोनों ही present है ना इस तरह से। झेलम, झेलम is the name of a river. Okay, like this. So these are all are used in the poem. So if you like my video, then please subscribe my channel. Thank you very much.